Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 9 of class 8 history, and the chapter's name is The Making of National Movement 1870s to 1947. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist, and if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, The Making of the National Movement, right? So what we are going to see in this chapter is that how Indian national movement started, how the people of India got together to fight for their independence, right? So we have studied so far that how Britishers came to India and how they established their rule over India. But now in this chapter we will see that how the Indians realize that they are being controlled by the foreigners, right? So in the previous chapters, we have looked at the British conquest of territories and takeover of kingdoms. So remember, in the initial chapters, we studied that how the Britishers came in India as a trader. They came here for the business. They wanted to trade in India. But eventually, what happened? They started interfering in the political affairs and then they started controlling the territories. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से जब उन लोगों ने हमारे देश की टेरिटरीज पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था तो उसके बाद उन्होंने जो लॉज वगैरह हैं उन्हें चेंज करना स्टार्ट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सेटअप किए। फिर जब ब्रिटिशर्स आ गए उनकी वजह से पेजेंट्स, ट्राइबल्स, इनकी लाइफ पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ा, दैट वी स्टडीड। एंड देन वी आल्सो स्टडीड दैट हाउ द ब्रिटिशर्स चेंज द एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया, राइट? अर्लियर वी यूज्ड टू हैव द Pathshala system. But then Britishers changed all these Pathshala system and they established a more English oriented or Western educational oriented system. Then debates regarding the conditions of the women. So in the very last chapter, that is the 8th chapter, we studied that how the condition of women was before 200 years ago and how the people try to make changes in these societal traditions. Then we also studied about the caste system. So in the 8th chapter only, we studied about the condition of women and the caste system, that how the caste system is a kind of a shackle for Indians. जैसे कि मतलब हमारे जो भारतीय हैं उनके एक तरीके से ये बेड़ी का काम कर रहा है, उनको पीछे खींचने का काम करता है ये कास्ट सिस्टम, क्योंकि कास्ट सिस्टम की वजह से क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग लोअर कास्ट के नाम पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जब पूरा देश एक साथ एक पायदान पे आके आगे काम नहीं करेगा तो हम इस देश की तरक्की को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to remove this caste system from our society. So if you are one of them who thinks that the caste system is right, then please start changing your thinking. The caste system is not very good. ये हमारे देश को एक तरीके से खोखला बना रहा है। तो वी शुड थिंक that everyone is equal. There is nothing like upper caste or lower caste, right? And if you see someone discriminating against some people because of the caste, then you should raise your voice. You should stop those persons immediately, right? कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से हमारे देश में सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म है वो आए। हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जो सोल्जर्स हैं उन्होंने म्यूटनी छेड़ दी थी मेरठ में और फिर वो दिल्ली चले गए थे, राइट? अब देखो हर एक जो चैप्टर है ना वो कुछ ना कुछ रिलेटेड है। ये कहानी आप पढ़ रहे हो, है ना? आप कोई ऐसे ऐसा मत सोचो कि आप कुछ अलग ही चीजें पढ़ रहे हो, जैसे मैथ्स वगैरह ऐसा तो नहीं है ना। ये एक स्टोरी है। हिज स्टोरी का मतलब ही क्या होता है? हिस्ट्री क्या होती है? हिज स्टोरी। वी आर स्टडीइंग द स्टोरी ऑफ द पीपल हु यूज्ड टू लिव अ फ्यू इयर्स बैक। तो सब कुछ जो है, सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप कोई भी चैप्टर को ऐसे आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। आप पिछला चैप्टर पढ़ते हो तो उसको अगले चैप्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करा करो, राइट? सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 वो हमने पढ़ लिया। द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, याद है हमने उसमें क्या पढ़ा था? कॉटन टेक्सटाइल का एग्जांपल लिया था, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। फिर हमने स्टील एंड आयरन एंड स्टील वाली जो इंडस्ट्री है उसका भी एग्जांपल लिया था, और देखा था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स आए जब, तो उनकी वजह से हमारे देश का जो पूरा ये कारोबार है, हमारे देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं, उनका काम कितना ज़्यादा अफेक्ट हुआ, right? So on the basis of what you have read about these issues, do you think Indians were discontented with the British rule? अब हमने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, हमने 8 चैप्टर जो हैं वो पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से आए, उनके रूल का क्या इम्पैक्ट रहा हमारे देश के ऊपर। तो हमने बहुत जगह ये पढ़ा भी था कि किस तरीके से लोग जो हैं ये फील करने लगे थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनके भले के लिए काम नहीं कर रहे।
राइट? सो हाउ वर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड? तो ये भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो लोग थे, जैसे हमने ट्राइबल्स वगैरह की बात करें, तो जब ट्राइबल्स लोगों को मना कर दिया था कि उन्हें जंगल में नहीं घुसने दिया जाएगा, तो किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा जो है अ, गुस्सा हो गए थे, वो ब्रिटिशर्स का अपोज़ करने लगे थे। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, उनके रूल के बारे में अब लोगों को थोड़ा-थोड़ा रियलाइज़ होने लगा था कि ये ब्रिटिशर्स कोई अच्छे लोग नहीं हैं, ये हमारे देश के लोग नहीं हैं, ये बाहर से आए हैं और हमारे ऊपर आके कब्ज़ा कर रहे हैं। इस सब चीज़ को हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ की और इकट्ठा हुए अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। तो द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज़्म, तो ये जो नेशनलिज़्म है कैसे उसकी जो है इमर्जेंस हुई, कैसे वो शुरू हुआ? द अबव मेंशन्ड डेवलपमेंट्स लेड द पीपल टू आस्क अ क्रूशियल क्वेश्चन, व्हाट इज़ दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर व्हॉम इज़ इट मीन? अब जब इतने सारे इवेंट हो गए, जब इतना सब कुछ हो गया कि भई जब ये ब्रिटिशर्स आए उसकी वजह से हमारे यहाँ के जो वर्कर्स वगैरह थे, जो व्यापारी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह थे, उनके काम के ऊपर जो है इफ़ेक्ट पड़ा। हमारे देश के जो पेज़ेंट्स थे, ट्राइबल्स थे, उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा। ये सब होने के बाद जो है, लोगों को ये सोचने पर मजबूर जो है वो एक तरीके से हो गए कि भई आखिरकार ये कंट्री जो इंडिया है, वो है किसकी? ये जो भारत देश है, पहली बात तो वो है क्या? व्हाट इज़ दिस कंट्री ऑफ इंडिया? ये जो भारत देश हम बोलते हैं, ये है क्या आखिरकार? और ये किसके लिए है? कौन है इस देश के असली हकदार? The answer that gradually emerged was India was the people of India and all the people irrespective of class, color, caste, creed, language और gender। ठीक है? तो जब लोगों ने इस चीज़ पे और ज़्यादा गौर किया तो ये बात निकल के आई कि इंडिया जो है वो क्या है? लोगों का है। मतलब कि आप कंफ्यूज मत होना, इंडिया वाज़ द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया का मतलब वो सभी लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं। देखो एक कंट्री किससे बनती है? किसी ज़मीन से कोई कंट्री नहीं बनती, मतलब वो भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, बट साथ ही साथ जो कोई भी कंट्री है वो उसके लोगों से बनती है ना? जहाँ जो लोग उस जगह पे रह रहे हैं वो उस कंट्री को वो कंट्री बनाते हैं। तो इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया में रहने वाले लोग। अब चाहे कोई भी लोग हों, चाहे वो किसी भी मतलब कोई भी लोग मतलब जो ओरिजिनली यहाँ से हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, चाहे अमीर हों, गरीब हों, कोई भी उनका कलर हो, कोई भी गोरा हो, काला हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्रीड हो, कोई भी लैंग्वेज, किसी भी जेंडर के वो हों, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, वो सभी लोग जो है मिलकर इंडिया को इंडिया बनाते हैं, एक देश बनाते हैं। एंड द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड द सिस्टम वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम। और जो हम बात करते हैं कि whom इज इट मीन, कि आखिर ये जो इंडिया है वो किसके लिए है, तो इंडिया में जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी सिस्टम है, ये पूरी कंट्री जो है ये इन सभी लोगों के लिए है जो कि इंडिया में रह रहे हैं, जो इंडिया के निवासी हैं। ठीक है? With this answer came the awareness that British were exercising control over the resources of India and the lives of its people, and until this control was ended, India could not be for Indians। अब जब ये चीज़ क्लियर हो गई कि भई इंडिया मतलब क्या है, इंडिया में जो इंडिया के लोग हैं, वही इंडिया है, और जो है इंडिया किसके लिए है, वो इंडिया के लोगों के लिए ही है। मतलब कि अ, सारे लोग मिलके कंट्री को बना रहे हैं और उस कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज़ वगैरह हैं, उनको इस्तेमाल करने का हक किसका है? उस कंट्री में रहने वाले लोगों का, उनके मूल निवासियों का, राइट? और हमें ये पता है जो ब्रिटिशर्स हैं वो मूल निवासी तो है नहीं, वो तो किसी बाहर देश से आए हैं, है ना? वो तो ब्रिटेन वगैरह से यहाँ पे आए हैं, उनका देश तो अलग ही है। तो लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ना, ये अपना कंट्रोल हमारे देश के रिसोर्सेज़ पर कर रहे हैं। मतलब हमारे देश के रिसोर्सेज़ को वो मतलब अंधाधुंध जो है वो यूज़ करे जा रहे हैं, बिना किसी केयर के, बिना ये सोचे समझे कि भई इस देश के जो लोग हैं, वो इस रिसोर्सेज़ को कैसे यूज़ करें या उनका हक है इस रिसोर्सेज़ पर, ऐसा कुछ ना सोचते हुए जो ब्रिटिशर्स हैं, वो क्या कर रहे थे, मतलब आँख बंद करके बस इंडिया के रिसोर्सेज़ को एक्सप्लॉइट करने में लगे थे। और लोगों को ये जो है अब रियलाइज़ होने लगा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, वो हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के रिसोर्सेज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। और जब तक कि इस कंट्रोल को हटाया नहीं जाएगा, तब तक जो इंडिया है, वो इंडियंस का नहीं बनेगा। This consciousness began to be clearly stated by the political associations formed after 1850, especially those that came into being in the 1870s and 1880। अब क्या हुआ कि 1850 के बाद ना बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो है वो फॉर्म हुई थी, और वो पॉलिटिकल एसोसिएशंस वगैरह क्या करने लग गई, इस आइडिया पे और ज्यादा जोर देने लग गई कि भाई इंडिया क्या है, इंडिया किसके लिए है। तो ये जो कॉन्शियसनेस थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम पे आके रूल कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, हमारे जो देश के रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर रहे हैं, इस चीज पे जो ये पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है, वो और ज्यादा जो है गौर करने लग गई, लोगों को बताने लग गई। और स्पेशली हम बात करें तो जो
पॉलिटिकल एसोसिएशंस 1870s एंड 1880s में आई थी, उन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर किया, जोर दिया, जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम पे रूल कर रहे हैं और हमें अपने देश को इन ब्रिटिशर्स के रूल से आज़ाद कराना होगा। मोस्ट ऑफ दीज वर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स। अब ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी वो ज़्यादातर ये देखने मिलता है कि इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस को कौन लीड कर रहा था, कौन इनको एक तरीके से हेड कर रहा था, चला रहा था, तो वो ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो कि इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो इंग्लिश माध्यम से की है, मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे जो बाहर देश से जो है वो पढ़ के आए हैं और बड़े बड़े प्रोफेशनल्स थे जैसे लॉयर्स वगैरह जो हैं वो इन एसोसिएशंस को लीड कर रहे थे। द मोर इम्पॉर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा। तो अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे कि हो गई पूना सार्वजनिक सभा, दूसरी इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये कुछ जो हैं पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऐसा नहीं था सिर्फ यही थी, इसके अलावा भी बहुत सारी जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं वो बनाई गई थी। नोट द नेम पूना सार्वजनिक सभा। तो जैसे आप इनके नेम देखोगे ना तो आपको देखने मिलेगा कि इनके नाम ही जो हैं वो इनके एम को दर्शाते हैं। जैसे एग्जांपल लें पूना सार्वजनिक सभा, तो इसका लिटरल मतलब क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब हमें पता है कि क्या, ऑफ और फॉर ऑल द पीपल, ऐसी चीज जो कि या तो लोगों की है या तो सभी लोगों के लिए है, मतलब कि सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के लिए। सर्व का मतलब होता है ऑल और जनिक का मतलब होता है ऑफ द पीपल, ठीक है, जन जो होते हैं, लोग जो होते हैं, तो कोई ऐसी चीज जो कि सभी लोगों के लिए है, राइट। So though many of these associations functioned in specific parts of the country, their goals were stated as the goals of all the people of India, not those of any one region, community or class. अब भले ही ये जो एसोसिएशंस थी वो ज्यादातर जो हैं ऐसी एसोसिएशंस थी जो देश के किसी एक कोने में या किसी एक जगह पे जो है वो ऑपरेट कर रही थी, चल रही थी, बट इनके जो गोल हैं, इन एसोसिएशंस के जो एम है, उनके लिए कहा जाता था कि वो देश के सभी लोगों का एम है ना, कि मतलब मान लो पूना सार्वजनिक सभा जो है वो एम कर रही है कि भाई देश को मुक्त कराना है ब्रिटिशर्स वगैरह से, तो वो ऐसा कहेंगे, भले ही वो मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में वो काम कर रहे हैं, बट वो ऐसा कहते थे कि ये जो एम है ना वो पूरे देशवासियों का है, सिर्फ उस जगह के लोगों का ही नहीं है। दे वर्कड विद द आइडिया दैट पीपल शुड बी सोवरेन। अब ये जो एसोसिएशंस थी ये किस एम की तरफ काम कर रही थी कि जो लोग हैं वो सोवरेन होने चाहिए। सोवरेन का मतलब क्या होता है? द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, कि मतलब किसी के पास इतना हक हो कि वो अपनी मर्जी से अपने जो कोई भी काम है वो कर सकता है, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी सकता है, कोई और उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, तो वो हो गया सोवरेन। तो इंडिया के लोग जो हैं वो अपने हिसाब से अपने लिए खुद जो है इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लें और कोई बाहर का जो है आके हमारे देश के कामों में टांग ना अड़ाए। तो ये चीज जो है वो चाहते थे सभी लोग। अभी क्या हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो बाहर के लोग हैं और वो हमारे देश को चला रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। तो सोवरेन का मतलब क्या होगा कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से निकल जाएंगे और जब हम इंडियंस खुद अपने देश को अपने हाथों में लेंगे, तो आज जो है हम कह सकते हैं हम एक सोवरेन कंट्री हैं, क्योंकि हमारे देश को हमारे देश के लोग ही चला रहे हैं, हम इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस लेते हैं, राइट। तो ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी उनका एम था सोवरेन करवाना, अ मॉडर्न कॉन्शियसनेस एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म। और सोवरेन जो है वो नेशनलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। नेशनलिज्म मतलब क्या हो गया? राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से जब आप अपने देश से प्यार करते हो, उसके ऊपर जो है प्राउड करते हो। इन अदर वर्ड्स दे बिलीव दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सोवरेन का मतलब और ये पूरे नेशनलिज्म का मतलब क्या था, कि लोगों को एक तरीके से इतना एम्पावर करना कि वो अपने डिसीजंस जो है वो खुद ले सकें। द डिससैटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन 1870s एंड 1880s। तो लोग जो है अब थोड़ा थोड़ा ब्रिटिश रूल से नाराज तो होने लगे थे, बट ये जो नाराजगी है वो और ज्यादा बढ़ी 1870s और 1880s के बीच में। द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878 disallowing Indians from possessing arms। अब एक आर्म्स एक्ट जो है वो पास हुआ था 1878 में, और ये एक्ट जो है वो लोगों को डिसअलाउ करता था, मतलब लोगों को मना करता था कि कोई भी जो इंडियन है वो अपने पास आर्म्स मतलब कि कोई हथियार जो है वो नहीं रखेगा। In the same year, the Vernacular Press Act was also enacted in effort to silence those who were critical of the government। और सेम ईयर में 1878 में क्या हुआ, एक वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इनेक्ट हुआ था। वर्निकुलर का मतलब क्या होता है? लोकल लैंग्वेज, ठीक है। और प्रेस मतलब क्या होता है? जैसे मीडिया वगैरह होती है जो एक तरीके से न्यूज वगैरह लिखते हैं। तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट, इसका क्या एम था कि वो ऐसी प्रेस
ऐसे न्यूज़पेपर्स वगैरह जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ लिखते हैं, अगर उनकी निंदा करते हैं तो ऐसे न्यूज़पेपर्स के खिलाफ जो है वो कदम उठाया जाएगा, उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। ये एक्ट जो है वो ब्रिटिशर्स लाए थे इंडियन लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि जो इंडियंस हैं वो भी अब ब्रिटिशर्स का जो है क्रिटिसिज्म करने लगे थे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स वगैरह ऐसे न्यूज़पेपर जो कि ब्रिटिशर्स का क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उनको ये जो है वो सजा दे रहे थे। The act allowed the government to confiscate the assets of the newspaper, including their printing press, if the newspaper published anything that was found objectionable. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो उस न्यूज़पेपर के जिसने कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ लिखा है, उस न्यूज़पेपर के सभी जो एसेट्स हैं उनको अपने कब्जे में कर सकते थे, है ना? उनकी जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं उनको भी अपने कब्जे में कर सकते थे, अगर वो कुछ ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिखते हैं। In 1883, there was a furor over the attempt by the government to introduce Albert Bill. अब 1883 में लोग जो हैं वो बड़े ही एक्साइटेड थे एक बिल को लेकर, जिसका नाम था एल्बर्ट बिल। अब ये बिल क्या था? The bill provided for the trial of British or European persons by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country. अब क्या था कि देश में जो जज वगैरह हैं, उसमें उस टाइम पे कुछ ऐसा सिस्टम था कि जो ब्रिटिशर्स हैं ना, उनका ट्रायल कोई भी इंडियन पर्सन नहीं करेगा, मतलब कि उनका जो केस है, उनका जो एक तरीके से जज बनेगा, कोई भी इंडियन उन लोगों का जज नहीं बनेगा। व्हाइट पर्सन जो ये यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे, उनका जज कोई व्हाइट पर्सन ही होगा, कोई यूरोपियन या ब्रिटिशर्स ही होगा। इंडियन जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे सिस्टम चल रहा था। अब जब ये बिल आया कि इस बिल में क्या लिखा था कि जो यूरोपियन पर्सन हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्हें अब इंडियंस जो हैं वो भी ट्रायल उनका कर सकते हैं। मतलब मान लो एक इंडियन जज जो है वो किसकी सुनवाई कर रहा है, किसके केस की सुनवाई कर रहा है, किसी ब्रिटिशर के केस की सुनवाई कर रहा है, उसके केस को जज कर रहा है। तो अब ये चीज जो है वो अलाउ करने की बात की जा रही थी इस बिल के थ्रू, राइट? और अगर ये बिल जो है वो पास हो जाता तो उसकी वजह से क्या होता कि ब्रिटिश और इंडियन लोगों में, इंडियन जो जजेस हैं उनके बीच में और ज्यादा इक्वालिटी बढ़ जाती। ठीक है, बट व्हेन द व्हाइट अपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द बिल, इंडियंस वर एनरेज्ड। बट हुआ क्या, जो व्हाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, इन्होंने क्या किया, इस बिल का बहुत ज्यादा अपोज किया, उसका जो है विद्रोह किया और गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया कि वो इस बिल को वापस ले ले। क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा था कि इंडियंस जो है अब वो जो व्हाइट लोग हैं उनका जो केस है उसे जज कर सकते थे। तो ब्रिटिशर्स को ये अपनी एक तरीके से बेइज्जती लगी, उन्हें लगा कि भाई ये इंडियंस हमारे केस कैसे जज कर सकते हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया और उसकी वजह से ये जो बिल है वो विथड्रॉ हो गया। बट जो इंडियन लोग थे वो इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्हें समझ आने लगा कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो कोई हमारे भले की बात नहीं कर रहे, ये तो हमसे चिढ़ते हैं, ये तो हमें अपने से कम समझते हैं, है ना? द इवेंट हाइलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। अब उससे हुआ क्या कि लोगों को ये समझ आ गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो रेशियल हैं, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लोगों में भेदभाव करते हैं, हमें अपने इक्वल जो है नहीं समझते। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिशर्स के और ज़्यादा अपोज में आ गए। द नीड फॉर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड बीन फेल्ट सिंस 1880s। तो 1880 से ही ये लग रहा था कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि पूरी ऑल इंडिया लेवल के लिए हो। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चल तो रही थी बट वो देश के किसी एक हिस्से में ही ऑपरेट कर रही थी। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत लोग महसूस कर रहे थे जो कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे चले, राइट? और उस एसोसिएशन को कौन लीड करे, कौन हेड करे? एजुकेटेड इंडियंस जो हैं वो उसको लीड करे। बट द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी डीपेंड दिस डिजायर। अब जब ये एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई, जब ब्रिटिशर्स ने इस बिल को वापस लेने पे गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो इच्छा थी एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, ये और ज्यादा गहरी हो गई। अब और ज्यादा लोग चाहने लगे कि भाई एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत तो है ही है। The Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885। तो दिसंबर 1885 में क्या हुआ कि लगभग 72 डेलीगेट्स जो हैं वो लोग पूरे हमारी जो पूरी कंट्री है उसके अलग अलग हिस्सों से 72 डेलीगेट्स निकल कर आए और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया। द अर्ली लीडरशिप, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तयाबजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्य अय्यर। तो ये कुछ जो हैं वो इम्पोर्टेंट लीडर्स के नेम है उस टाइम के, जो 72 डेलीगेट्स में से कुछ लोग थे। और ये ज्यादातर हम देख सकते हैं इसमें कि ये लोग जो है वो बॉम्बे एंड कलकत्ता से बिलोंग करते हैं।
अब बात करें नरौजी की, तो वो जो है वो एक बिजनेसमैन थे और एक पब्लिसिस्ट थे। पब्लिसिस्ट सेटल्ड इन लंदन। तो पब्लिसिस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि किसी आइडिया को लोगों के बीच में सर्कुलेट करता है, लोगों तक कोई आइडिया जो है वो पहुंचाता है, या तो रिपोर्ट्स वगैरह लिख के या तो मीटिंग्स में बोल के वो अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचाता है। तो जो नरौजी थे वो भी एक बिजनेसमैन तो थे ही, उसके साथ वो पब्लिसिस्ट भी थे। एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नरोजी जो है वो कुछ समय के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। उन्होंने बहुत सारे यंगर नेशनलिस्ट को गाइड किया था। एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिशियल थे फिर ए.ओ. ह्यूमे, जिन्होंने मतलब काफी अच्छा रोल निभाया सारे इंडियंस को एक साथ लाने में। मतलब कि जो ए.ओ. ह्यूमे थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो कि रिटायर हो चुके थे, मतलब कि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम किया था, बट अब वो रिटायर हो गए थे। अभी जो ए.ओ. ह्यूम हैं, ये वैसे तो इंडियन नहीं थे, बट इन्होंने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो निभाया। इंडिया के जो अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग रीजन से जो लोग आते हैं, उनको एकत्रित करने में, एक साथ लाने में। और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश करने में काफ़ी अच्छा रोल निभाया था। हू डिड द कांग्रेस सीक टू स्पीक फॉर? अब जो कांग्रेस है, वो किसके लिए बोलने की, किसके लिए आवाज़ उठाने की जो है वो कोशिश करती है? A newspaper, the Indian Mirror, wrote in January 1886, the first National Congress at Bombay is the nucleus of a future parliament of our country. तो ये जो इंडियन मिरर है, जो कि 1886 जनवरी में जिसने लिखा था एक रिपोर्ट में कि जो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई बॉम्बे में, ये जो है एक तरीके से ये एक ऐसी मीटिंग थी जो कि हमें फ्यूचर पार्लियामेंट जो है हमारी कंट्री की होने वाली है उसको दर्शाती, एंड विल लीड टू गुड ऑफ इनकंसीवेबल मैग्नीट्यूड फॉर आवर कंट्रीमैन। और एक तरीके से ये जो मीटिंग हुई, ये जो एसोसिएशन बनी है, इसकी वजह से क्या होगा कि हम फ्यूचर में देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारा कंट्रीमैन है, जो देशवासी हैं, उनका जो है वो बहुत भला हो पाएगा। राइट? सो बदरुद्दीन तैयब जी एड्रेस द कांग्रेस एज प्रेसिडेंट इन 1887। Thus, this Congress is composed of the representative not of any one class or community of India, but of all the different communities of India. तो वो कहते हैं कि जो कांग्रेस है, जिसमें कि अलग-अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बट ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किसी एक कम्युनिटी से ही नहीं आते। वो इंडिया के किसी एक वर्ग को ही बिलॉन्ग नहीं करते, बट इंडिया की जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनको लोग बिलॉन्ग करते हैं। मतलब कि कोई सो कॉल्ड लोअर कास्ट से निकल के आता है, कोई गरीब जो है वो भी इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट है, कोई अमीर भी है। तो मतलब अलग-अलग जो लोग हैं, वो हर तबके के लोग जो हैं, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट थे। एक तरीके से वो सभी इंडियंस को रिप्रेजेंट करते थे।